Good evening to all our viewers. Today we have Mr. Anandji from the Chanan Association. They are primarily based out of Jalandhar and they have been working in the field for the education as well as for the better treatment of child practices in the state of Punjab. We welcome you here, sir. It's an honor to be here with you. My dear listeners, I'm Amarjit Singh Anand. I'm from Jalandhar, Punjab. I'm expert member of State Advisory Board, Punjab, under RPWD Act 2016. I'm also a member of the Juvenile Justice Board, Jalandhar. I'm a member of the Zonal Railway Consumers Consultative Committee Board, as well as member of the Grant in Aid, Government of India, representing Punjab. So, dear listeners, it's a pleasure that Vivek Club has invited me to be part of the discussion today. Thank you so much. Yes, Vivek. Could you please tell us how did you go from being an advocate to start something for the child welfare, sir? See, by academics, I'm not an advocate. Sir. I'm a social worker and have been entrusted by the panel to work as a member of the Child Welfare Committee from 2018 to 2021. Then in 2021, I was notified as a member of the JJB Jalandhar. So my passion, I have a these children are very close to my heart. So, whether they are from the disability or from children with need of care and protection. So that is my passion, which Almighty has blessed me to get nearer to them, to know where the fault is and how come the child is conflict with the law. So when you in the past, I have seen that the cases which are not solved by the police, some innocent children are also dragged into those cases which were unsolved for years. So that is a very sad part, that even the Human Rights Commission cases go to them also, that the child is not involved in any crime and he is named in the FIR. And so certain cases are there which really make a normal person come into, in case he is not getting justice, tomorrow he might be a criminal. Very true, sir. So to give them justice, to know their issues and the facts, we have to decide whether he is required under juvenile for justice or he should be let off. So while sitting in the Juvenile Justice Board, we do take up such cases, know the background of the story, then decide what should be the fate of the child. So when we say that
a child might not be accessory to a particular case, but implicating him might lead to him being an accessory in a bigger conspiracy, right? So, sir, my question is, there are some heinous crimes that in which a child is involved. At that point of time, the court tries to involve the Article 15 of the Juvenile Section Board, after which that they try to try that kid as a adult. So what is your opinion about that? See, when there is a erroneous crime, still we have to see that the child doesn't become a gangster later on, doesn't become a criminal later on. How can he be brought into the mainstream as a good citizen of the country? We have to work for this. We have to do little hard patch-up work through counseling, through giving him the best, showing him the past, how his father or his forefather were. Were they were good workers or they good citizens? In case yes, then why can't he go on their path? In case the child's family background is bad, then our seeing the past, we have to change our mind also. How to bring him back into the main fold? How is it possible that he can come back to the main fold? So, in case we give him chance, tell him that yes, your punishment can be pardoned, provided for next 9 months or 1 year, you have to perform some good human services, maybe a old age home, maybe a home with intellectual disabilities, maybe somewhere he can render good services. If he belongs to a Hindu community, then go to mandir, do some seva. If he belongs to some other community, Jain community or Sikh community, to give some good humanity services. And after taking the results out of it, he'll see that his working has changed, his lifestyle has changed, and he will not commit any further any crime. His punishment can be pardoned. जैसे हम कहते हैं हमारे दिव्यांगजन जो होते हैं उनको जब भी किसी पब्लिक प्लेस में जाना हो, सपोज कोई बस यूज करनी है, सपोज कोई ट्रेन यूज करनी है, भले किसी कार्यालय में ही क्यों ना जाना हो, उनको हमेशा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो सर हम इसको एड्रेस कैसे करेंगे सर? सर देखो, हमारे लिए कानून तो बन जाते हैं सर, पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानून जो है, इट इज डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट. Some states are very sensitive and some are absolutely not sensitive. There is a state where a person with vulnerable section of the society, that is disability, is getting a pension of 300 rupees. And in the same country, there is a state which is giving a pension of 3,000 rupees. So just see the difference, sir. Getting a 300 rupees pension, a person who is totally, you can say, he cannot move, 100% disabled. So do you think a mere 300 rupees will be a good survival? No, sir, never. Or 3,000 rupees is a good survival? No, sir. No. At least respectable amount should come out from the government for these vulnerable people.
सो व्हेन वी से कि सरकार को पैसे देने चाहिए, वो फिर से वही बोल देंगे कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे हमारे सारे लोग टैक्स नहीं भरते। सर, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से कर देगी, पर हम एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं कि हमारे जो दिव्यांगजन है उनको ऐसा ना लगे। हमारे सर। हम मैं आपको बीच में बोल रहा हूं, सर। अगर सरकार की नीयत गरीबों के प्रति, असहाय के प्रति, एक जरूरतमंद के प्रति एक अच्छी नजर हो, तो ये सब कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली सर। ये एक मामूली सा काम है। हम जहां पर नहीं जरूरत है, हम वहां पर पैसा लगा देते हैं। हम पार्क बना देते हैं, पर पार्क में ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं कि जो एक दिव्यांग के काम में आ सके। हम रेलवे स्टेशन, 100 साल हो गए हमारे रेलवे स्टेशन को बने हुए, सर। और 2016 में कानून आ गया, 7 साल 8 साल हो गए कानून को आए हुए। अमृतसर से लेके अंबाला तक अगर हम चले जाते हैं, नॉट अ सिंगल रेलवे स्टेशन इज असेसेबल। हम एक डिसेबल को अगर जलंधर से शताब्दी पकड़ के दिल्ली जाना है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उसको जिंदा जिंदा इंसान को 4 आदमी उसको उठा के लेके, जैसे जैसे कि किसी मुर्दे को हम कफन के लिए लेके जाते हैं, शमशान के लिए लेके जाते हैं, वो तब दूसरे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएगा और वहां से ट्रेन पकड़ेगा। कहां है सोशल सिक्योरिटी? हम कब कब इन लोगों को इनके हक पहुंचाएंगे? अगर मैं शुरुआती दौर से बात करूं, हमारे सिविल अस्पतालों के अंदर ऐसा अर्ली इंटरवेंशन नहीं है। अगर किसी मां का एक दिव्यांग बच्चा पैदा होता है, उस माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब हमारे साथ ये क्या हो गया। एक तो गरीबी, लाचारी, ऊपर से दिव्यांग बच्चा। नो, जस्ट सी द कंडीशन। सर, काफी दुखद बात है सर ये। हमारे हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, तो उसके साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर की बात करें, हमारे पास पंजाब में, मैं पंजाब स्टेट से हूं इसलिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, हमारे पास ऐसे होम नहीं है जहां पर हम इन दिव्यांगों को रख सकें। मेरे नजर के अंदर ऐसे ऐसे दिव्यांगों के केसेस आए हैं। एक रिक्शे वाले की बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, दिव्यांग थी, मां सो रही थी, बाप ने बच्चे को उठाया और एक चौराहे की झाड़ियों में फेंक दिया। वो तो आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो गया, कैमरास है, सीसीटीवी है, वो सब उसमें पता लग गया और वो बच्चे को निकाल लिया गया, बचा लिया गया, उसको एक होम में भेज दिया गया। आज मजबूरी के करके भी लोग ऐसे कदम उठाते हैं। कोई अपने दिल से, कोई अपने जिगर के टुकड़े को नहीं फेंक सकता है। इतना तो मैं अपना चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी मतलब जुवेनाइल को ऐसा ऐसा काम नहीं करेगा कि जुवेनाइल को उसको जीने का हक ना दे, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको वो अपनी रोटी रोजी नहीं कर पा रहा, दिव्यांग को कैसे पालेगा। क्योंकि हमारे को जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने आज तक हमारे को सोशल सिक्योरिटी नहीं दी है, 70 सालों में नहीं दी है। आगे वाले आने वाले समय में जो एक बहुत ही कठिनाई पूर्वक है, आज हमारा सारा यूथ यूरोप की तरफ भाग रहा है, कहता है कि मैं एजुकेशन लूं और बाहर निकल जाऊं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए हमारी सरकारों को अपनी नीतियों के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, वैसी पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी, उनको
नोटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी सरकारें बहुत समर्थ हो गई हैं जब से जीएसटी को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। पर उस पैसे के साथ साथ हम लड़ाई के क्षेत्र में तो बहुत आगे जा रहे हैं कि हम फलाना हवाई जहाज ले लें, फलाना बैटल के लिए ये इक्विपमेंट्स खरीद लें, पर एक असहाय बंदे के लिए हमारी सोच नहीं है। वहां पर सैकड़ों लाख करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं आर्मी के लिए। करना चाहिए, होना भी चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। पर देश की सुरक्षा हमको जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे आपस में तालमेल, रिलेशंस दूसरे साथी सूबों के साथ, दूसरे साथी मुल्कों के साथ अच्छे ना होंगे। पर मुल्क के अंदर एक गरीब असहाय एक टाइम रोटी खाता है और 3 टाइम भूखा सोता है, तो हमारी पॉलिसी को हमको बदलना पड़ेगा। हमको अपने नजरिए को फिर बदलना पड़ेगा, एक अच्छा नजरिया ऐसा लाना पड़ेगा। एक अच्छे हिंदुस्तान की सृजना तभी पॉसिबल है अगर हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो काफी दुखद की बात है जब आप कहते हैं कि हमारे समाज ने हमारे दिव्यांगजनों के साथ ऐसा किया है। काफी दुखद की बात तो है। पर सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा जो आने वाली नई पीढ़ी है, ये धीरे धीरे करके यूरोप, यूके, बाहर बाहर के देशों की तरफ जा रही है और ये वापस आने के लिए मजबूर हो रही है, वापस आना नहीं चाहते। तो सर, आपके इसके बारे में क्या कहना है सर? यार, जब तक हमारी नीतियां साफ नहीं होंगी यंग जनरेशन के लिए, आज एक पंजाब नहीं, सारी स्टेटों में यह हाल हो गया कि पक्की नौकरियां ना देके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नौकरियां दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? एक डाटा एंट्री की तनख्वाह 16,000 रुपया है, और उस डाटा एंट्री वाले यंग 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे को आप 7,000 और 7,500 से ज्यादा नहीं देते हैं। उसकी 16,000 आपने तनख्वाह निकाली सरकार के खजाने में से, और उसको देने वक्त आप उसको 7,500 दे रहे हैं। बाकी जो इतना जो बड़ा मार्जिन, 9,000 रुपए का मार्जिन, वो पॉकेट हो गया। वही अगर उस गरीब को मिलेगा तो वो क्यों बाहर जाने की सोचेगा? क्यों? हमारा सिस्टम गलत है। हमारे सिस्टम में सुधार चाहिए। जब हम पैदा होते हैं, हम 20 रुपए दे के हमारे माँ बाप हमारा जन्म प्रमाण पत्र लेते हैं। हम थोड़े बड़े हुए, दूध का पैकेट लेके आए हमारे माँ बाप, उसके ऊपर जीएसटी या सेल टैक्स या लोकल कर दे के आए। हम एक एक कदम पे पैसा देते हैं। उस पैसे का दुरुपयोग कहाँ है? गरीब के नजर में हम देखेंगे, हम ऊंचे वाले की नजर में नहीं देखेंगे। हमको गरीब के साथ देखना है कि आज उसको पढ़ाई के लिए, दिव्यांग को पढ़ाई के लिए हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है, हमारा सीबीएसई का एक्ट कहता है, हमारे एजुकेशन बोर्ड कहते हैं कि इनको फ्री पढ़ाई दी जाएगी। मेरे को आप दिखा दो, कोई दिखा दे कि हाँ, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो चेन है, ये कैम्ब्रिज स्कूल्स की चेन है, और बड़े बढ़िया ऐसी बाहर की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं। कितने लोगों को उन्होंने, पहली बात तो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं वहां पर, दूसरी बात वो कितनों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इंक्लूसिव की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, यूएनसीआरपीडी की बात करते हैं। 2007 में उस समय के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस के साथ एक कन्वेंशन साइन करके आए थे। उसके तहत ये बिल बना था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वाला। आज 7 साल में
एक भी सूबा नहीं है भारत का जिसने ईमानदारी से उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया हो। सर जैसे तो आप इनके हमें हक बता रहे हैं, कौन लड़ेगा? जो ये जुवनाइल ही है सब। सर और जैसे यही कि आप जुवनाइल जब उसको उसका हक नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, जिसका जो एक फिर दुर्भाग्य की बात होती है। हमारे साथ बड़े चैलेंजेस हैं हमारे बच्चों के लिए। तो हमको पेरेंट्स के संगठन, मजबूत संगठन चाहिए। पेरेंट्स के हर हर जिले पद्धर में चाहिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के हक के लिए इकट्ठे होकर और उनकी आवाज को उठाएं, एक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो काफी मेरे अगर अगर एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ अच्छे मार्ग बनाएंगे तो देश को हम आगे भी ले जाएंगे और इन बच्चों का फ्यूचर भी हम सेव कर लेंगे। ये बच्चे यहाँ से छोड़ के बाहर कभी नहीं जाएंगे। सर, सर आपने जो आज हमारे सामने बातें रखी, इसका महत्व हमें शायद आज समझ ना आए, शायद कल समझ ना आए, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल में हमें दिखेगा कि जब हमारे आसपास के लोग तड़पेंगे कि उन्हें क्या मिलना चाहिए और उन्हें नहीं मिल रहा, तो हमें भी दर्द होगा। ये बिल्कुल सत्य है सर। तो सर जाने से पहले आप एक बार बता पाएं कि आप अपने एसोसिएशन के हिसाब से आप अगले 1 साल में क्या हासिल करना चाहेंगे सर। विवेक जी, मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब में एक ही वोकेशनल सेंटर है जो सर मेरी संस्था चला रही है। मेरे साथ बाकी अभिभावक, बाकी पेरेंट्स मिल के चला रहे हैं। ये कोई पर्सनल कोई ट्रस्ट नहीं है, ये खाली अभिभावकों की ट्रस्ट है। जो जितने 18 साल के बच्चे जो ऊपर 18 से ऊपर हो जाते हैं और स्कूलों से बाहर हो जाते हैं, जिन्होंने सर्टिफाइड एजुकेशन नहीं की है, ना ओपन स्कूल से उन्होंने 8वीं पास की ना 10वीं पास की, उन बच्चों को हम नहीं चाहते हैं कि वो सड़कों पे घूमे। एक टाइम था, ल्यूनेटिक एक्ट हुआ करता था 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था। वो एक्ट बदल बदल के आज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के रूप में हमारे सामने है। अगर हम इन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हमको उन बच्चों को वोकेशनल देना पड़ेगा। उनको उनको उनके अंदर काम करने का एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा। उनकी दिमाग की संतुलना को जो खोई हुई है उसको संगठित करना पड़ेगा। ये सब हम कर रहे हैं और अपने वोकेशनल सेंटर से विदाउट एनी गवर्नमेंट फंडिंग हम बच्चों को घर से लाते हैं और उनके घर पे वापस छोड़ के आते हैं शाम को। और मैं आपको जानकर खुशी होगी, और मेरे सेंटर का एक बच्चा जुडिशरी के अंदर पहला बच्चा है ऑल ओवर इंडिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, जो एक प्यून की जॉब कर रहा है, जिसको एक प्यून की जॉब मिली है। काफी गर्व की बात है ये, काफी गर्व की बात है ये तो। मेरी तो इच्छा है कि मैं अगर किसी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, उसके मालिक से मिलता हूँ, उसको कहता हूँ कि आप हमारे बच्चों को एम्पावर करो, उसको पेट्रोल भरना हम सिखाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे उसको, आप उसको नौकरी दे देना, रिस्पेक्टेबल उसको तनख्वाह भी दे देना। किसी हॉस्पिटल में जाता हूं, क्योंकि जालंधर एक बहुत बड़ा एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल्स का हब है, नर्सिंग होम्स का हब है। मैं वहां जाता हूं, उनके हॉस्पिटल्स के मालिक से मिलके उनको कहता हूं कि एक बच्चे को नौकरी दे दो, हाउस कीपिंग कर लेगा, आपके पेशेंट्स के बेड संभाल देगा, पेशेंट्स को सफाई का सारा डस्टिंग का काम कर सकता है। आप उसको रिस्पेक्टेबल तनख्वाह दे देना, हम बच्चा आपको देंगे। अगर बाकी
डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लोग ऐसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं और 18 साल से ऊपर वाले बच्चों को एक लाइन में लेके आए, तो हम एक अच्छे भारत की सृजना में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। काफी अच्छा लगता है सर, जैसे हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल हमारे लिए जरूरी है सर। मैं आपके इस काम के लिए आपको सराहना देना चाहूंगा सर, और थैंक यू, आज आप हमारे साथ जुड़े। और मैं चाहूंगा हम आपसे आज के बाद 6 महीने बाद 1 साल बाद मिले, तो जो आपने हमें बताया कि आप उसको और भी आगे लेके जा सके। धन्यवाद सर। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। सर।